Hello students, today we are going to see question answers of chapter 10 Natural Resources of class 5th ICSE board. So let's start. This is first question, what are the natural resources, and you have to write name 3. All the natural things, this is answer, all the natural things we use are our natural resources. 3 resources are as follows: air, water and soil. So already I told you that what is natural resources in the video in which we have completed the chapter. So from there also and from book also this is the answer. Let's go to next question. How do plants protect the soil? ये पूछ रहा है कि प्लांट सॉइल को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. प्लांट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन. सॉइल अगर हम प्लांट लगाते हैं तो बारिश जो होती है उस समय जो मिट्टी जो बह जाती है उस मिट्टी को बहने से बचाते हैं प्लांट. सो द प्लांट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन. इरोजन मीन्स बीइंग कैरीड अवे, बह जाना. सो बहने से बचाते हैं प्लांट्स. द रूट्स ऑफ प्लांट होल्ड द सॉइल फ्रिमली एंड स्टॉप फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे और ब्लोन अवे. सॉइल में अगर हम प्लांट लगाएंगे तो जो सॉइल है उसको प्लांट जो है उनकी रूट्स फ्रिमली पकड़ के रखती हैं. एंड जब भी बारिश होती है बहुत तेज तो प्लांट्स जो है, प्लांट्स की रूट जो है सॉइल को पकड़ के रखती है, इस कारण से मिट्टी नहीं बह पाती है. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. Only some wild animals are of use to us directly. How are the rest are important? कुछ ही एनिमल जो होते हैं वाइल्ड एनिमल्स वो हमारे डायरेक्ट यूज में आते हैं, बट व्हाट अबाउट अदर, इट इज आस्किंग. सो आंसर इज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टुगेदर. If you talk about food chain, any kind of food web, then in that we will see all kind of organism, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, they are linked together. नेक्स्ट स्टेप, व्हेन इवन वन ऑर्गेनिज्म वेनिशेस. वेनिशेस मीन्स खत्म हो जाना. फ्रॉम एन एरिया द सर्वाइवल ऑफ मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स गेट अफेक्टेड. अगर कोई भी एक एरिया से कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर ख़त्म हो जाता है तो सर्वाइवल ऑफ अदर एनिमल्स वो भी इफ़ेक्ट हो जाएगा. क्योंकि जैसे कि घास है, घास पे डिपेंड होते हैं ग्रास हॉपर. अगर ग्रास हॉपर डिसअपीयर हो गए तो जो ग्रास हॉपर को खाने वाले एनिमल थे उनको प्रॉब्लम आ जाएगी. एंड इन दिस वे द साइकिल विल एंड द बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट विल डिस्टर्ब. थर्ड इज दिस अपसेट द एनवायरमेंटल बैलेंस. अगर साइकिल ब्रेक होगा तो फिर एनवायरमेंटल बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाएगा. एंड सिंस वी टू आर द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, so human being will also affect. So these 4 points you have to write in this answer. So to understand this question you can see this diagram. This sun is there. Due to this sun we are getting this plant, and this plant is eaten by the small insects, that is bug, grasshopper, and these small insects are eaten by some big animals, and it is also eaten by human beings. So you see, if any one of them is missing, like this plant is missing, because this is also a kind of thing only. So if this plant is missing, you see this cycle will not start. How can this chicken will eat this bug, and we cannot eat this chicken if this bug is not there, because this grass is not there. Now talking about this bug, if suppose this bug is not present, so who will eat up the grass, and how this cock or hen will get its food? So this will be problem. Okay, some human beings are not eating chicken directly, but after this small animals are died, their bodies are mixed with the their body decomposes with the help of bacteria, and the decomposed body is used as fertilizer for this plant. And we can grow different vegetables using fertilizer very well. So in this way the cycles disturb if any of the organism vanish. अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाती है साइकिल में से तो एनवायरमेंटल बैलेंस भी डिस्टर्ब होगा, प्लस ह्यूमन बीइंग्स भी डिस्टर्ब होंगे.
Let us see next. How do sedimentary rocks form? Sedimentary rocks कैसे बनती हैं? So these are the steps of formation of sedimentary rocks. First step is sedimentary rocks are made up of pieces of rock. पहले तो ये बात जाननी चाहिए that sedimentary rocks जो हैं pieces of rock से बनी होती हैं. Second step, these pieces of rocks are loosed by weathering. Weathering means बार बार टकराना and converting this big rock particle into very small rock particles. Third step, then the rock is converted into very small pieces known as sediments. बड़ी rocks जो है बहुत छोटे छोटे rocks में convert हो जाती है, that small rocks is known as sediments. Now these sediments is buried deeply and pressed together. और ये sediments जो हैं अर्थ के अंदर में बहुत ही नीचे दबते जाती हैं और उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई होते जाता है. And in this way they form the sedimentary rocks. तो ये 4 steps involved है sedimentary rocks के formation में. One more time revise. Sedimentary rocks फर्स्ट ऑफ ऑल रॉक से बनती है. ये रॉक्स जो हैं वेदरिंग के थ्रू छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है. छोटे पीसेस सेडिमेंट्स कहलाते हैं. ये सेडिमेंट्स जो हैं बहुत ही डीप दबते जाते हैं अर्थ में और प्रेशर अप्लाई होते जाता है उन पे अर्थ का. एंड इन दिस वे दे फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज सॉइल फॉर्म फ्रॉम रॉक? सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है रॉक्स से? So let's see, these are the step how the soil is formed from rock. First step is soil is made up of rock. पहले तो आपको जानना चाहिए कि soil जो है सबसे पहले rock particle से ही बनी होती है. Now how this is made up from rock particle, let's know. First of all, the breaking down of, wait a minute, the breaking down of rock is called weathering. रॉक जो जब छोटे टुकड़ों में टूटती है देन दिस प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग. तो पहले रॉक जो है वेदरिंग के थ्रू स्मॉल रॉक्स में कन्वर्ट होती हैं. रॉक बिकम वीकर एंड क्रैक बिकॉज ऑफ डेली हीटिंग एंड कूलिंग. चूँकि अर्थ में डेली हीटिंग एंड कूलिंग होते रहती है तो रॉक्स जो हैं बड़ी रॉक्स वो वीक होते जाती हैं और वीक होती हैं तो वो टूट जाती हैं. वीक होती हैं तो फिर क्रैक हो जाती हैं. क्यों क्रैक हो जाती, क्यों वीक हो जाती? क्योंकि अर्थ में डेली हीटिंग डेली कूलिंग चलते रहते हैं. द रूट्स, फोर्थ स्टेप है, द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इनटू क्रैक्स इनटू रॉक्स, growing into plant and cracks into rocks also break the rock. Means that plants are growing into cracks. आपने देखा होगा दीवारों में जो कुछ दरारें पड़ी रहती हैं उसमें छोटे छोटे प्लांट्स उगाते हैं. तो जब प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तो वो क्रैक्स में और डीपली जाते हैं और डीपली जाने के कारण वो क्रैक्स जो हैं और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं. और जब क्रैक्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो वो रॉक्स जो हैं ब्रेक हो जाएगी. तो जो रूट्स ऑफ प्लांट होती हैं वो भी जो है रॉक्स को ब्रेक करने का काम करती हैं. When loose pieces of rocks are carried and tumbled about by rain water, they break further. अब जब ये जो पीसेस हैं, ये जो रॉक्स के पीसेस छोटे छोटे हो चुके हैं, जब बारिश होगी तो बारिश के साथ जो है ये रॉक के पीसेस नीचे आएंगे ऊपर से लुढ़कते हुए और मतलब घूमते जाएंगे और रोटेट होते जाएंगे. तो ये रोटेशन होने के कारण बार बार एक दूसरे से रगड़ाएंगे तो फिर वो बहुत ही रगड़ के बहुत ही छोटे छोटे निकलते जाएंगे. एंड इन दिस वे जितना ज़्यादा होते जाएगा टम्बल्ड एक दूसरे से टकराते जाएंगे उतने ज़्यादा छोटे पीसेस में कन्वर्ट होते जाएंगे. एंड दिस इज हाउ सॉइल फॉर्म्स रॉक्स फ्रॉम रॉक्स ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स. So soil is formed over million of years. It is not so that soil is forming in 1 or 2 years. So this is the answer of this question. How does the soil form from rock? So let's see next question. Name a non-metal and mention one of its uses. So we have seen so many non-metal: sulfur, phosphorus, carbon. So any one of the metal name you can write here. So one non-metal I have written here, phosphorus. And its use, we have already seen phosphorus is burning very fast, so we used to make matches from it. You can also write one non-metal, carbon, and carbon is used
diamond is of carbon, graphite is of carbon, and diamond is used to make jewelry. So you can write your answer also. Next question, how are forests and grasslands helpful? Forest and grasslands कैसे helpful हैं हमारे लिए? Forest and grasslands helps us in many ways. Forest और grassland हमारी help करते हैं बहुत तरीके से अलग अलग. They give us wood. Already we know forest से हमें wood मिलती है, and wood we can use to make furniture, we can use to make house and so many other uses. We can also make showpieces, statues. So this wood, the particular thing we are getting from the forest, and grasses to make paper. और इन दोनों wood और grasses को मिला करके हम पेपर भी बना सकते हैं. So for first thing we are getting from the forest is wood and grass to make paper. Second thing, they give us timber, firewood and medicine. Timber भी देते हैं which helps us to construct the big buildings. They also give us firewood. In villages, what the human beings are doing, they are collecting the wood which is not of use and burning it, and then cooking their food with the help of that firewood. So in this way, this forest help us to cook food also. When we are collecting this firewood and cooking food, so it also helps us to cook food. It also gives medicine, not direct medicine, but many plants are there which are used as medicines, and any kind of medicines raw material is coming from plant only. So medicines are also given by this forest. So this is also one of the benefit of forest. Third one, they also give us fruit, vegetables. Fruit in forest, so many kinds of different trees are there, different kind of fruits are found, different kind of vegetables are found. So you can have different kind of fruit and vegetables from the forest. They are natural home of wild animals. As we know that lion, fox, these kind of animals are living in the forest, and most of the animals are living in forest. So we can say that forest is the home of wild animals. This is also one of the use. Next, they maintain the balance of gases in the air. These forests and grassland, as they do photosynthesis process, and in photosynthesis process they are taking carbon dioxide and releasing oxygen. So they make the balance of gases in nature. GASES. So they make the balance of gases in the air. They also protect the soil from erosion. Soil को बहने से बचाते हैं plant. Why? Because the roots of the plant hold the soil. जो roots होती हैं plant की, वो soil को hold करके रखती हैं very tightly, and इसीलिए जब बारिश होती है तो फिर soil जो है washed away नहीं होती है, और plant जो हमारी help करते हैं soil को erosion होने से बचाने के लिए. अगर बहुत तेज बारिश हुई so soil will washed away and we cannot grow plant again in that. So these are the help, or you can say uses of the forest and grasslands. Now fill-ups are also given in your book. 7 fill-ups are given. So let us see one by one these fill-ups. Mixtures of metal are called alloys. We have seen that metal mixture, that what is this metal mixture? Two metals like 22 karat gold, or steel or bronze. These are the mixtures. So when two metals are mixed together like iron, copper, gold, copper, so these are known as alloy. When lava hardens, it forms igneous. When lava hardens, it forms igneous. हार्डेंस मीन्स जब लावा ठंडा हो जाता है, एकदम कूल हो जाता है, तो कौन सी रॉक बनाता है? सो इट फॉर्म इग्नियस रॉक. नेक्स्ट वन इज रॉक फॉर्म फ्रॉम विच मेटल आर टेकन आउट आर कॉल्ड ओर्स. जिस रॉक से हम मेटल्स को निकालते हैं, जिस पत्थर से हम मेटल्स को निकालते हैं, दैट रॉक इज नोन एज ओर. जिसमें भी मेटल प्रेजेंट होता है उस पत्थर को हम बोलेंगे ओर.
नेचुरल गैस इज ऑफन फाउंड विथ पेट्रोलियम। नेचुरल गैस जो हमें रहता है वो हम बनाते नहीं हैं, हमें ऑलरेडी वो पेट्रोलियम के साथ मिलती है, उससे सिर्फ हम उसको अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। सो नेचुरल गैस इज ऑफन फाउंड विथ पेट्रोलियम। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इज कॉल्ड वेदरिंग। जो बड़ी बड़ी रॉक्स हैं जब वो छोटी रॉक्स में कन्वर्ट हो रही होती हैं, ब्रेक हो रही होती हैं, सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इज नोन एज वेदरिंग। ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन नेचुरल सराउंडिंग्स आर कॉल्ड एनवायरमेंट। कोई भी ऑर्गेनिजम्स जब अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स में रहता है तो इसे बोलते हैं इसका एनवायरमेंट। मोस्ट मेथड्स ऑफ प्योरीफाइंग ओर्स इन्वॉल्व हीटिंग। जब भी हमें किसी भी ऐसी रॉक जिसमें मेटल प्रेजेंट है उसमें से हमें मेटल को निकालना है, उस पत्थर में से हमें मेटल अलग करना है और रॉक का पार्टिकल्स अलग करना है, तो ऐसी सारी प्रोसेस जो है हीटिंग के थ्रू होती हैं। मतलब ज़्यादातर प्योरीफाइंग प्रोसेस में हीटिंग इन्वॉल्व होती है। लाइक इन योर होम ऑल्सो इफ़ यू गो थ्रू, आपको वाटर को प्योर करना है, अगर आपके पास कोई केमिकल नहीं है तो आप उसको हीट कर देंगे तो उसमें से इम्प्योरिटी अलग हो जाएगी और वाटर अलग हो जाएगा। सो मोस्ट ऑफ द प्योरीफाइंग प्रोसेस ओर्स के, जिसमें से हमें रॉक में से मेटल निकालना है, दैट इज हीटिंग प्रोसेस दे आर यूजिंग। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। I hope you understood this one. Now we will go to choose the correct options are also given in your book. So let's go through that. First one is petroleum is purified in. जो भी पेट्रोलियम पदार्थ हमें निकलता है, हम निकालते हैं, ये ओशन से निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें एक मिक्सचर मिलता है जिसमें डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ऑल द थिंग्स आर मिक्सड टुगेदर। तो हम जो है ये पेट्रोलियम को अलग कैसे करेंगे? सो ये जो है ऑयल वेल से हम जो है पेट्रोलियम थिंग्स निकालते हैं, माइंस से हम कोल निकालते हैं, रिफाइनरीज वो जगह है जहाँ से हम पेट्रोलियम निकालते हैं। सो करेक्ट आंसर इज रिफाइनरीज। So correct answer is refineries. C, A option is correct. Now next question, kerosene and diesel come from. Kerosene and diesel कहाँ से आते हैं? Natural gas से? No, ये तो already पेट्रोलियम मिक्सचर में से हम अलग कर रहे हैं। कोल? No, कोल्स तो माइंस में से आती हैं और माइंस में केरोसिन एंड डीजल नहीं मिलता, सिर्फ कोल मिलता है। पेट्रोलियम? यस, पेट्रोलियम से केरोसिन एंड डीजल बनता है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर इग्नियस रॉक चेंज इनटू। हीट एंड प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं तो इग्नियस रॉक किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सो इग्नियस रॉक विल कन्वर्ट इनटू सेडिमेंट्री रॉक? नो। कोल? कोल में तो कन्वर्ट नहीं होगी। मेटामॉर्फिक रॉक? यस, इट विल कन्वर्ट इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। So option C is correct. Let us go to next question. Which type of rock is called? कोल किस टाइप की रॉक है? सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक? इग्नियस हो नहीं सकती, मेटामॉर्फिक भी नहीं हो सकती, सो इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक। लेट्स चेक द आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ व्हेन एन ऑर्गेनिज्म वेनिशेस फ्रॉम द वर्ल्ड इट बिकम्स। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म वो पूरे वर्ल्ड से ख़त्म हो जाती हैं, वेनिशेस मीन्स डिसअपियर हो जाना, ख़त्म हो जाना, तो उस स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं? एक्सपायर? नो, एक्सपायर मतलब तो उसकी डेट निकल गई है। एंडेंजर? डेंजर में है। डेंजर में तो तब होता है जब उसकी 1-2 नंबर बचे रहती, सो एंडेंजर भी नहीं होगा क्योंकि वो ख़त्म हो गई है, सो इट विल नोन एज एक्सटिंक्ट, ख़त्म ही हो गई हैं। वेनिशियस मतलब ख़त्म हो जाना। सो option A is correct. Let's check its answer. Option A is correct. Now next question, which of these needed for strong teeth and bones? इसमें से कौन सा जो है हमें रिक्वायर्ड है स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स के लिए? कार्बन? कार्बन तो कोल, डायमंड ये सब होते हैं, तो ये सब हमारे टीथ के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। फॉस्फोरस?
सल्फर सल्फर भी रिक्वायर्ड नहीं होता है. सो फॉस्फोरस इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Option B is correct answer. So let's check the answer. Option B is correct. So in your book only this much questions are given. If you understood the concepts and if you like the video and want to watch more videos, then subscribe to my channel and see you in the next video. Thank you for watching the video.